Good morning, everybody. In the last video clip, we have studied about the factors affecting the evaporation, and that are number one was the temperature. The very first factor was the temperature. Number second was the surface area, and the third was the wind speed, and fourth was the humidity, and how these are going to affect the rate of evaporation that I have discussed in the last video clip. Okay, so today I am going to just discuss the topic. The topic is that how does the evaporation cause the cooling effect. This is the topic, that how does the evaporation cause the cooling effect. Okay, this topic I am going to discuss. So for explaining this topic, I am just going to discuss one activity just before you. Suppose you will see that I am having a container, and in this container you are able to see that I have taken some water in that. Okay, now we know that actually the evaporation takes place at every temperature, that we have discussed in our earlier video also. So whatever the water that is present in this container will evaporate. Now, for the evaporation of the water in this container, it required the heat. Now, actually, the heat is going to supplied by the two different sources. Number one is the whatever the heat that is present nearby the atmosphere in this container, है ना, जो भी इस कंटेनर के आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो इसको हीट सप्लाई करेगा. एंड नंबर टू, द हीट इज गोइंग टू बी सप्लाइड बाय दिस वाटर आल्सो, बिकॉज वी नो दैट दिस वाटर आल्सो कंटेन द हीट इन द फॉर्म ऑफ लैटेंट हीट. ठीक है, तो पहले आप ये समझ लो कि इस वाटर को इवोपोरेट करने के लिए हीट चाहिए, और हीट इसको कहां से मिलेगा? इन्वायरमेंट से, जो इसके आसपास में जो इन्वायरमेंट है, जो हीट अवेलेबल है उससे, या फिर दूसरा, और इसके पास एक और क्या सोर्स है, जो वाटर के पास अपना खुद का हीट है, जो कि लैटेंट हीट है. ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो इफ द हीट इज गोइंग टू सप्लाई बाय द एटमॉस्फेयर, तो अगर हीट एटमॉस्फेयर से सप्लाई करते हैं, इसको इवोपोरेट करने के लिए, तो एटमॉस्फेयर का जो हीट है वो अगर वाटर में आता है तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर डिक्रीज होगा. क्योंकि ये चीज आप पहले बहुत अच्छे से समझ लो, किसी भी चीज का अगर टेम्परेचर जो है अगर वो डिक्रीज करोगे तो वो हो जाएगा कूल, और किसी भी चीज का अगर आप टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करोगे तो वो हो जाएगा हॉट. तो इन्वायरमेंट का जो हीट है वो तो सारा चला जा रहा है इस वाटर को इवोपोरेट करने के लिए, तो यहाँ का जो हीट है वो डिक्रीज कर रहा है. इसका मतलब इसके आसपास का जो एरिया है वो हो जाएगा कूल. सेकंड थिंग देखो कि ये जो वाटर है, तो वाटर भी तो हीट सप्लाई कर रहा है, जो लैटेंट हीट इसके पास है वो भी सप्लाई कर रहा है इसके टॉप सरफेस को, ताकि वो इवोपोरेट हो सके. ठीक है, तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि जो वाटर अगर हीट सप्लाई कर रहा है तो वाटर का भी टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा होगा. तो आप समझ सकते हो कि इसके आसपास का जो एरिया है, जो एटमॉस्फेयर है, वो भी टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, और जो वाटर है उसका भी टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है. क्यों? क्योंकि वो दोनों हीट प्रोवाइड कर रहे हैं इस वाटर को, ताकि वो इवोपोरेट कर सके. तो इस तरह से आप कह सकते हो कि वाटर जो है वो एक कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग इवोपोरेशन. ठीक है, तो दिस वाज द टॉपिक, हाउ डज द इवोपोरेशन कॉज द कूलिंग इफेक्ट. ओके, now I'm going to discuss the few questions related to this topic. This is given in the blue question, and you can see in the page number, you will find in the page number 10 you will find these questions. Okay, the very first question that I'm going to take here is that why does a desert cooler cools better on a hot dry day? क्वेश्चन का मतलब ये है कि कोई एक डेजर्ट कूलर जो है वो हॉट ड्राई डे में बहुत ज्यादा अच्छा ठंड क्यों कर सकता है, बहुत अच्छा से कूलिंग इफेक्ट क्यों प्रोवाइड कर सकता है. ठीक है, तो इसका मैं आंसर आपको एक्सप्लेन करता हूं. ठीक है, try to understand. And one more thing, just listen the answer very carefully, because you have to write the answer in your own words, है ना. तो listen the explanation of all the answer very carefully. Okay, now see. So suppose I'm just taking one cooler. Suppose this is one cooler, is that. Suppose this is a type of a cooler, you can just understand simply the figure. So suppose this is a cooler. Okay, now you know that in the cooler it contain the water also, so when the cooler runs, जब ये कूलर चलता है तो आप देखोगे क्या कि इस कूलर के ये जो ओपनिंग है, माउथ है, यहां से देखो स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स यहां से बाहर निकलते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स यू माइट हैव सीन. अब देखो, अब ये जो वाटर वेपर के जो ड्रॉपलेट्स है ये बहुत बड़े साइज के होते हैं. ठीक है, तो इनको इवोपोरेट करना है, तो इनको इवोपोरेट करने के लिए इनको चाहिए हीट. तो इसका मतलब इस कूलर के आसपास का जो एरिया होगा वो इसको प्रोवाइड करेगा हीट, ताकि ये इवोपोरेट हो सके. तो जब ये आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो जब इसको हीट प्रोवाइड करेगा, तो आप देखोगे क्या कि ये इवोपोरेट होकर के
इवोपरेट होकर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब इसके आसपास का जो एरिया है या आसपास के जो इन्वायरमेंट है वो सारा इसको हीट प्रोवाइड करा रहा है ताकि इवोपरेट हो सके। तो जब ये हीट प्रोवाइड करा रहा है इसके आसपास का इन्वायरमेंट, तो आसपास के जो इन्वायरमेंट है उसका टेम्परेचर अपने आप डिक्रीज होगा, और उसका अगर टेम्परेचर अगर डिक्रीज होगा तो आप डेफिनेटली कर सकते हो कि इसके आसपास का एरिया जो होगा कूलिंग इफेक्ट होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन में था कि बिकम ऑन अ हॉट ड्राई डे, ये देख रहे हो क्वेश्चन में लिखा है कि हॉट ड्राई डे, मतलब ये हॉट ड्राई डे में ये बहुत अच्छा कूलिंग इफेक्ट क्यों प्रोड्यूस कर सकता है एज अ नॉर्मल डेज। तो आप देखो, हमने एक फैक्टर को डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, दैट इज द ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी के साथ जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब देखो कैसे, सपोज करो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है। अगर बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है मतलब पहले से यहाँ पे वाटर वेपर बहुत ज्यादा होंगे, बहुत ज्यादा वाटर वेपर पहले से प्रेजेंट होंगे। तो अगर इस कूलर से जो भी वाटर ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं तो वो जल्दी इवोपोरेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं इवोपोरेट करेंगे? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारा वाटर ड्रॉपलेट्स पहले से प्रेजेंट है, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर ये ड्राई डे होगा तो यहाँ पे आसपास में जो वाटर वेपर बहुत कम होंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत कम होंगे, तो जो भी वाटर ड्रॉपलेट्स इस कूलर से आ रहा है वो बहुत जल्दी इवोपोरेट करके एनवायरनमेंट में जा सकता है। तो इसका मतलब बहुत जल्दी अगर इवोपोरेट करेगा, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट एब्जॉर्ब कर रहा है ताकि वो जल्दी इवोपोरेट कर सके। तो हॉट ड्राई डे में ह्यूमिडिटी कम होता है, तो उसके कारण क्या होता है कि जो भी वाटर ड्रॉपलेट्स है वो बहुत जल्दी आपको वेपर में कन्वर्ट करता है। इसलिए जो वाटर कूलर होते हैं वो हॉट ड्राई डे में बहुत अच्छा कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं रादर देन इन डिफरेंट डेज। तो इसका आंसर ये था। आई होप आप इस क्वेश्चन का आंसर समझ गए होंगे और आप इसे खुद से लिख सकते हो एक्सप्लेन करके कि व्हाट डज अ डेजर्ट कूलर कूल्स बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि हाउ डज द वाटर कीप इन अर्थन पॉट बिकम कूल ड्यूरिंग अ समर। आप देखोगे नॉर्मली समर के टाइम में अगर हम लोग, ये अर्थन पॉट का मतलब होता है मिट्टी का घड़ा, ठीक है। तो आप देखोगे अगर उसमें आप पानी रखते हो तो वो कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो सपोज वन अर्थन पॉट आई एम जस्ट ड्राइंग हियर। तो सपोज दिस इज a kind of an earthen pot. Okay, so you might be knowing that in the earthen pot there are small pores are there, tiny pores are there which cannot be seen by the naked eyes, है ना। very small pores are there, and from these pores only you will see that the water droplets generally came out फ्रॉम द इनसाइड ऑफ दिस अर्थन पॉट, है ना। जो ये आप घड़ा देखते हो तो इसमें बहुत ज्यादा टाइनी पोर्स होते हैं, और जो भी इसके अंदर वाटर फिलअप है तो उस टाइनी पोर से वो लगातार बाहर आते हैं। तो आप देखोगे कि ये जो अर्थन पॉट है इसके जो आउटर सरफेस वो हमेशा देखोगे इसमें वाटर अवेलेबल होता है। मतलब ये देखोगे कि हमेशा इसके बाहर का जो पार्ट होता है वो हमेशा आप देखो भीगा रहता है, क्योंकि ये वाटर ड्रॉपलेट से ये जो पोर्स होते हैं उससे हमेशा वाटर ड्रॉपलेट्स आते रहता है, ठीक है। तो इसके आउटर का पार्ट जो होता है वो पूरा हमेशा गीला होता है, ठीक है। हमेशा इसमें वाटर आप देखोगे, ठीक है। अब ये जो वाटर है, ठीक है, अब ये वाटर को इवोपोरेट करना है। तो अब इस वाटर को इवोपोरेट करने के लिए इसको हीट चाहिए। तो इसको जो हीट है वो कहां से मिलेगा? इसके आसपास का जो इन्वायरमेंट है इससे उसको हीट मिलेगा। जो जहां पे ये रखा हुआ है उसके आसपास का इन्वायरमेंट जो है वो इसको प्रोवाइड करेगा हीट, तो जब वो इसको हीट प्रोवाइड करेगा तो आप देखोगे कि जो भी वाटर ड्रॉपलेट्स है तो वो जब ये बाहर का इन्वायरमेंट से हीट को लेकर के जब वो इवोपोरेट करेगा तो इसके जो पास का ये मतलब जो इसके बॉडी है, मतलब ये जो कंटेनर का जो आउटर पार्ट है तो ये हो जाएगा बिल्कुल कूल, तो ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। क्योंकि जस्ट मैंने अभी पहले डिस्कस किया था कि इवोपोरेशन जस्ट रिजल्ट इन द कूलिंग इफेक्ट, मतलब कभी भी इवोपोरेशन होगा तो वो कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगा। तो इसके आउटर जो पार्ट है, ये बॉडी है, ये बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा, ठीक है। अब इसके कॉन्टैक्ट में जो वाटर इनसाइड है, ये भी कूल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो आपका हैंड है, अगर ये बहुत ज्यादा अगर कोल्ड है, अगर बहुत ठंडा है, अगर आप दूसरा हाथ इसके ऊपर रखोगे तो आप देखोगे क्या, ये हाथ भी पूरा ठंडा हो जाएगा। तो बिल्कुल सेम कंसेप्ट है कि अगर इसका ये वाला पार्ट जो आउटर पार्ट है ये पूरा हो चुका है ठंडा, ठीक है, और जो भी वाटर इसके कांटेक्ट में है तो वो भी अब क्या हो जाएंगे, उसका भी टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, ठीक है। वन मोर थिंग इज दैट कि फ्रॉम दीज टाइनी पोर्स ऑल्सो द लैटेंट हीट विच इज प्रेजेंट इन दिस वाटर ऑल्सो कम आउट। मतलब कहने का मतलब ये है कि मैंने तो आपको बताया कि जो इन्वायरमेंट का जो हीट होता है वो इन्वायरमेंट का हीट इस वाटर, जो भी इसके बाहर का वाटर है उसको वो इवोपोरेट करता है। लेकिन थोड़ा बहुत जो हीट जो वाटर के इनसाइड में होता है, लैटेंट हीट, वो भी इस टाइनी पोर्स से आप देखोगे वो भी बाहर आता है, और वो भी जो वाटर ड्रॉपलेट्स होता है वो भी उसको इवोपोरेट करके उसको वेपर में कन्वर्ट करता है। मतलब इस टाइनी पोर से आप देखोगे कि जो हीट है वो भी बाहर आता है, जो कि वाटर में प्रेजेंट होता है एज अ फॉर्म ऑफ अ लैटेंट हीट, है ना। तो इसका मतलब बाहर में जो वाटर प्रेजेंट होते हैं वो आप देखोगे
बाहर के टेम्परेचर से भी और अंदर के टेम्परेचर से भी, दोनों टेम्परेचर लेके इवोपोरेट करता है। तो फाइनली ये अंदर में जो उसका लिक्विड है, वाटर है, वो कूल हो जाता है। तो आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम जस्ट टेकिंग कि व्हाई डज अ पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और अ पेट्रोल और अ परफ्यूम ऑन इट, है ना। तो पहले आप ये देखो कि व्हाई डज अ पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल। एसीटोन का सिंपल मतलब होता है, यू माइट हैव सीन दिस वन, दिस इज अ सिंपली अ काइंड ऑफ अ नेल पॉलिश रिमूवर, है ना। तो आप कभी भी देखोगे कि अगर ये नेल पॉलिश रिमूवर को आप लगा के देखना हाथ में लगा के आप देखोगे तो इट विल जस्ट प्रोवाइड अ कूलिंग इफेक्ट, है ना। या फिर अगर आपके पास पेट्रोल होगा या फिर डिओड्रेंट है, तो आप डिओड्रेंट को अगर आप अपने हाथ में से मार के देखोगे तो देखोगे वो पूरा आपके हाथ को जिस पार्ट में आपने उसे स्प्रे किया है, यू विल फील द कूलिंग इफेक्ट। तो व्हाई डज एक्चुअली इट हैपेंस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो, एक्चुअली दीज काइंड ऑफ लिक्विड्स आर हैविंग अ वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट। जैसे ये जो नेल पॉलिश रिमूवर है, इसका दूसरा नाम एसीटोन भी है, एसीटोन, ठीक है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है कंपेयर टू द वाटर। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है अप्रॉक्सीमेटली 56 डिग्री के आसपास में होता है, ठीक है। तो 56 डिग्री जो है वो बहुत ही कम है वाटर से। तो जो लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, जो वाटर से बहुत कम होता है जिनका बॉइलिंग पॉइंट, उनको हम लोग बोलते हैं वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल जो लिक्विड होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और वो वेपर में बहुत ईजिली कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर इसके मैं ढक्कन को मैं खोल के ऐसे रख दूं तो ये बहुत जल्दी इवोपोरेट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कभी देखना किसी भी कंटेनर में आप थोड़ा पेट्रोल को रखना और देखना कि थोड़ी देर के बाद, 1-2 घंटे के बाद ना वो पूरा इवोपोरेट करके वो देखोगे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि वो सब हाईली वोलेटाइल है, मतलब जो भी लिक्विड वेपर फॉर्म में बहुत जल्दी कन्वर्ट कर जाते हैं वो हाईली वोलेटाइल होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज देयर बॉइलिंग पॉइंट आर लेस, ठीक है। अब देखो, अगर मैं उस एसीटोन को अगर मैं अपने हैंड पे लगाता हूं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, मतलब वो जल्दी इवोपोरेट कर सकता है। तो जब वो लिक्विड को मैं इसमें लगाऊंगा तो वो इवोपोरेट करने के लिए टेम्परेचर उसको चाहिए, तो वो टेम्परेचर कहां से यूज करेगा? मेरे हैंड से, क्योंकि आपको पता है कि अपने बॉडी का टेम्परेचर भी 37 डिग्री सेल्सियस है, वो भी उसको हीट प्रोवाइड कर सकता है। तो वो हीट प्रोवाइड करता है उस लिक्विड को ताकि वो इवोपोरेट हो सके। तो अगर ये हैंड का ये पार्ट जो है, अगर वो उसको प्रोवाइड कर रहा है हीट ताकि वो इवोपोरेट हो सके, तो इसका मतलब इस हाथ का, इस पार्ट का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज करेगा, और टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, डेफिनेटली यू विल फील cool. Understand? So you might have understood why does a palm feel cold when we put some acetone or a petrol or a perfume on it. Why? Because when we are going to put some acetone or petrol over the hand, then for the evaporation it will just absorb the heat of our hand and also from the environment to just get evaporated. So if it will use the heat from our hand, the temperature of our hand will decrease and definitely it will become cool. Okay, so this is the answer. Now one more thing I'm telling you, one more question is that what type of the cloth we should wear in summer. तो आपको पता है कि नॉर्मली हमें गर्मियों के दिन में कॉटन क्लोथ्स पहनने चाहिए, है ना। तो द आंसर आई विल टेल यू व्हाई, बिकॉज यू सी दैट एक्चुअली द कॉटन क्लोथ्स आर अ वेरी गुड एब्जॉर्बर ऑफ द वाटर, है ना। जो कॉटन क्लोथ्स जो होते हैं वो वाटर को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं। तो अगर आप समर के टाइम में अगर आप कॉटन क्लोथ्स पहनते हो तो यू व्हाट विल सी दैट ड्यू टू मोर हॉटनेस इन द एनवायरमेंट, you will see that our body will start sweating. You can see the sweating, it's sweating due to summer only. Okay, so this sweat is going to be absorbed बाय दैट क्लोथ ओनली। जो भी आपके बॉडी से स्वेटिंग होगा तो वो सारा जो स्वेट है वो उस कॉटन क्लोथ जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। अब वो कॉटन क्लोथ जब उसको एब्जॉर्ब कर लेगा तो अब उसको इवोपोरेट करना है। तो फॉर द इवोपोरेशन इट रिक्वायर्ड द हीट। अब वो हीट जो है उसको कहां से मिलेगा? तो इट विल जस्ट एब्जॉर्ब द हीट ऑफ आवर बॉडी इटसेल्फ ओनली। अब तो वो जो स्वेट, जो कॉटन क्लोथ ने जो स्वेट को एब्जॉर्ब कर लिया, तो उसको इवोपोरेट करने के लिए हीट चाहिए, और वो हीट उसको कहां से मिलेगा? वो एनवायरमेंट से भी हीट लेगा और अपने बॉडी से भी लेगा। तो अगर अपने बॉडी से हीट को लेता है इवोपोरेट करने के लिए तो अपने बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, और अगर बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज करेगा डेफिनेटली यू विल फील कूल इन द समर सीजन। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस, है ना। तो सम क्वेश्चन आई हैव लेफ्ट, जस्ट राइट द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चन योरसेल्फ ओनली, एंड दिस विल बी द लास्ट वीडियो फ्रॉम दिस चैप्टर. इन द नेक्स्ट video I am going to start the next chapter. Okay, so try to write all these questions that I have discussed, and some more questions that are given in the exercise. You can easily find out. Some questions are given in the exercise. These are the homework and you have to write yourself. Okay, thank you.